Next method is project method. First introduction. Project method is an American origin and is an outcomes of diffuse philosophy of pragmatism. Means project method अमेरिकन की origin है एंड डिव्यूज के pragmatism की philosophy का एक outcomes है. Then in project method, teaching and learning are considered from the child's point of view, and in this method knowledge and skill are learned by pupils through practical handling of problem in their natural setting. Means project method में टीचिंग एंड लर्निंग को चिल्ड्रंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जाता है एंड इस मेथड में नॉलेज और स्किल को उनकी नेचुरल सेटिंग में प्रॉब्लम की प्रैक्टिकल हैंडलिंग के थ्रू से बाय प्यूपिल सीखा जाता है. द नेक्स्ट इज डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड, लर्नर्स डिक्शनरी एज ए प्लान ऑफ एक्शन. मीन्स लर्नर डिक्शनरी एज ए प्लान ऑफ एक्शन है. सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर किलपैट्रिक, ए प्रोजेक्ट इज ए यूनिट ऑफ होल हार्टेड पर्पसफुली एक्टिविटी कैरिड एंड प्रीफरेबली इन इट्स नेचुरल सेटिंग. मीन्स प्रोजेक्ट पर्पसफुली एक्टिविटी की एक यूनिट है जिसे कैरिड किया जाता है नेचुरल सेटिंग में प्रीफरेबली. देन थर्ड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जे डॉट ए स्टीवेंसन, ए प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स मोस्ट नेचुरल सेटिंग. मीन्स प्रोजेक्ट एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड है जो कि मोस्ट नेचुरल सेटिंग में कंप्लीट किया जाता है. Next is basic principles of project method. In that, psychological principles of learning. Here first is learning by doing, second learning by living, third children learn better through association, cooperation and activity. The next, psychological law of learning. Psychological law of learning is law of readiness, law of exercise and law of effect. So here first principle is principles of activity. In that, activity is a significant features of this method. Children select, plan, execute and evaluate their project themselves. Means activity project method की significant means important feature है जिसमें children themselves project का selection, plan, execute करते हैं and project का evaluate करते हैं. Then second, principles of social experience. In that, the project is selected from real life situation and every project should be a social experience for the children. Means project को real life situation से select किया गया है and every project को children के लिए एक social experience होना चाहिए. Then third principle is principles of reality. The project cannot be motivating and interesting for the learner unless it is natural and real from the learner's point of view. Means project method students के लिए तब तक इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती जब तक कि लर्नर की पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरल एंड रियल ना हो. देन फोर्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी. नॉलेज इज मीनिंगफुल एंड वर्थवाइल if it is practicable and useful. Means if project method practicable and useful है तो knowledge meaningful and worthwhile है. The next, principles of motivation. In that, the selected project should be purposeful, therefore motivating for the learner. Purpose and goal make the project meaningful and significant. Means selected project learner के लिए पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल होना चाहिए एंड पर्पस एंड गोल मेक द प्रोजेक्ट मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट. द नेक्स्ट इज स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज प्रोवाइड सिचुएशन. द प्रोजेक्ट शुड अराइज आउट ऑफ द फेल्ट नीड्स आउट ऑफ द स्टूडेंट. द टीचर शुड प्रोवाइड सच सिचुएशन टू स्टूडेंट्स विच may arouse some suitable questions to which the students seek answer. It should look important, must be interesting and purposeful for the student. And the teacher can provide variety of situations through discussion, questioning, library work, field work, etc. Means mainly in first step में teacher create करते हैं proper situation students के लिए classroom में and
प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के थ्रू फेल्ट की गई नीड्स से अराइज होने चाहिए, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को सिचुएशन प्रोवाइड करने चाहिए जिनसे सम सूटेबल क्वेश्चन अराउज हो सके एंड स्टूडेंट्स को आंसर देने चाहिए एंड प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग एंड पर्पसफुल होना चाहिए, जिसमें टीचर्स प्रोवाइड करते हैं वैरायटी ऑफ सिचुएशन थ्रू डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, लाइब्रेरी वर्क एंड फील्ड वर्क. Then second step is selecting and purposing. This selection of the project is done by the student. The teacher should refrain from purposing any project, otherwise the whole purpose of the method would be defeated. However, the teacher can guide the student in the selection of a good project, keeping in mind the interest, aptitude and ability of the student. In this step, the nature and goal of the project is determined as well as the limits and scope of the project is clearly defined. Means mainly इस स्टेप में प्रोजेक्ट की नेचर एंड गोल डिटरमाइन किए जाते हैं और साथ ही प्रोजेक्ट के लिमिट्स और स्कोप को क्लियरली डिफाइन किया जाता है. इस स्टेप में प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया जाता है बाय द स्टूडेंट एंड ऑल्सो टीचर की अप्रूवल के साथ एंड स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं सिलेक्शन ऑफ गुड प्रोजेक्ट के लिए. Then third step is planning. Planning involves the selection of the most appropriate and feasible set of activities to be executed. The student should choose the most practical plan of action. The student themselves should do the planning with the teacher as a guide. Means प्लानिंग में एग्जीक्यूटेड की जाने वाली एक्टिविटीज़ के मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड फिजिबल सेट को सिलेक्शन इन्वॉल्व्स है एंड स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं मोस्ट प्रैक्टिकल प्लान ऑफ एक्शन एंड स्टूडेंट्स देमसेल्फ प्लानिंग करते हैं विद द टीचर एज ए गाइड एंड प्लानिंग के टाइम सम पॉइंट्स को कंसिडर किया गया है लाइक द नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. Second, the degree of complexity of project. Third, time allotted to finish the project. And fourth, availability of material resources. Then fourth step is execution, means implementation or performance. In this step, the teacher helps the student in assigning work to different student in accordance with their interest, aptitude and capabilities. Each member of the group should be actively involved in execution of the project as per the purposed action plan. Means mainly इस स्टेप में टीचर डिफरेंट स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स को वर्क असाइन करने में हेल्प करते हैं एंड ग्रुप के ईच मेंबर को प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के लिए मीन्स एग्जीक्यूशन के लिए एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व होने चाहिए. The next is evaluation. The student along with the teacher should review the progress of the project at frequent intervals. Means judging or evaluation should be done by both teacher and students. And this is fifth step of project method, and this is to ensure that the students are progressing towards the realization of the objectives of project. Without evaluation, the project can move out of the focus, and the evaluation of the project has to be done in the light of proposed plan, difficulties in the reaction and achieved result. Then last step is recording. This is sixth step. Mainly in this step, teacher students both are should keep a complete record of work, how they planned, what discussions were held, how duties were assigned, and finally criticism of their own work. The
Next is criteria of a good project. First, the project should be purposeful, useful and practically applicable to the daily life of the student with clear well defined objective. Means project students के daily life में purposeful, useful and practically applicable होना चाहिए, जिसमें clearly objective define हो. Second, the project should help in providing useful, meaningful learning experience to each member of the group. Means project ग्रुप की ईच मेंबर को यूज़फुल एंड मीनिंगफुल लर्निंग का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में हेल्प करनी चाहिए. देन थर्ड, द प्रोजेक्ट शुड बी विद इन रीच ऑफ द स्टूडेंट इन अकॉर्डेंस विद देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी लेवल. मीन्स प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट एंड एबिलिटी लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. द नेक्स्ट, दिस प्रोजेक्ट शुड बी feasible means easily in terms of the availability of human and material resources and time limit. मीन्स प्रोजेक्ट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी एंड टाइम लिमिट के टर्म्स में फिजिबल होना चाहिए. मीन्स ईजिली होना चाहिए एंड प्रैक्टिकेबल होना चाहिए. द नेक्स्ट, द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट शुड मैच द एबिलिटी लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. मीन्स प्रोजेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मीन्स कॉम्प्लिकेबल और डिफ़िकल्टी का जो लेवल है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी के लेवल से मैच होना चाहिए. द नेक्स्ट, द लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी लाइक पर्पसफुल एंड नेचुरल. मीन्स प्रोजेक्ट की लर्निंग एक्टिविटीज़ एज ए पर्पसफुल एंड नेचुरल लाइफ होनी चाहिए. The next is roles of the teacher. In that, first, guide student in selecting the project according to their interest, aptitude and ability. Means स्टूडेंट्स को गाइड करने हैं उनके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करनी है. द सेकंड, हेल्प स्टूडेंट इन प्लानिंग एंड अलाउटिंग एक्टिविटीज़ टू ईच मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ एबिलिटी. मीन्स एबिलिटीज़ की नेचर के अकॉर्डिंग ईच मेंबर को एक्टिविटीज़ की प्लानिंग बनाने एंड अलाउटिंग करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं. थर्ड, help in creating and friendly and democratic atmosphere in the classroom, promoting cooperation and harmony. मीन्स कॉपरेशन हारमनी को प्रमोट करने के लिए क्लास को एक फ्रेंडली और डेमोक्रेटिक एटमोसफियर बनाने में हेल्प करें. फोर्थ, बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स एंड विलिंग टू हेल्प एज एंड व्हेन इट इज़ नेसेसरी. मीन्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो और व्हेन नेसेसरी हो हेल्प करने के लिए रेडी होना. द नेक्स्ट इज सुपरवाइज एंड चेक वेदर द प्रोजेक्ट इज रनिंग इन टाइम एज प्लान. मीन्स सुपरवाइज एंड चेक करें कि क्या प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइमली चेंज हो रही है. द नेक्स्ट, सजेस्ट एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इफ़ नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट. मीन्स एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को सजेस्ट करने के लिए इफ़ प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए नेसेसरी हो. द नेक्स्ट, चेक द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द स्टूडेंट्स. मीन्स स्टूडेंट्स के थ्रू बनाए गए रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें. द नेक्स्ट, हेल्प इन द पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स. मीन्स प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के पीरियोडिक असेसमेंट में हेल्प करना. पीरियोडिक असेसमेंट मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल में हेल्प करना. The next is merits of the project method. Means advantages of the project method. In that first point, it is based on sound psychological principles and law of teaching. Means project method sound psychological principles and teaching के law पर based है. Second, it provides scope of independent work and individual development. Means project method independent work and individual development के लिए scope provide करती है. Third, it promotes habits of critical thinking and encourage the student to adopt problem solving method. Means प्रोजेक्ट मेथड क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट थिंकिंग के हैबिट्स को प्रमोट करती है एंड स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करती है. मीन्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट, इट प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, इनकलकेट स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन एंड एक्सचेंजेस ऑफ एक्सपीरियंस एमंग द स्टूडेंट्स. मीन्स प्रोजेक्ट मेथड सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट करते हैं, मीन्स बढ़ाते हैं एंड स्टूडेंट्स के बीच कॉपरेशन एंड एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करने की स्पिरिट को अराउज करते हैं. द नेक्स्ट, इट एनकरेज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, मेकिंग द सब्जेक्ट फंक्शनल एंड मीनिंगफुल टू द लर्नर. मीन्स प्रोजेक्ट मेथड सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को एनकरेज करते हैं. मीन्स
बढ़ाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट लर्नर को फंक्शनल एंड मीनिंगफुल बनाते हैं. द नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्वायर ए लॉट ऑफ स्किल, ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस, इंटरप्रिटेशन एंड सो ऑन. मीन्स इन दिस मैथड चिल्ड्रंस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एंड लॉट ऑफ स्किल प्रोवाइड करने में, ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस एंड इंटरप्रिटेशन में. द नेक्स्ट, इन दिस मैथड द चिल्ड्रंस आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग टास्क. मीन्स प्रोजेक्ट मेथड में चिल्ड्रन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग टास्क में. द नेक्स्ट, इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन एमंग द स्टूडेंट्स. मीन्स इन दिस मेथड स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करते हैं. द नेक्स्ट, इट अपहोल्ड्स द डिग्निटी ऑफ लेबर. मीन्स दिस मेथड डिग्निटी ऑफ लेबर को बनाए रखते हैं. द नेक्स्ट, इफ वाइडन्स द मेंटल हॉरिजोन ऑफ द स्टूडेंट. मीन्स स्टूडेंट्स के मेंटल माइंड, मीन्स जिसे हम बोल रहे हैं हॉरिजोन, को वाइडेंस करता है. द नेक्स्ट, इट मेक्स द लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड फैसिलिटेट्स द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एज द लर्निंग इज रिलेटेड टू रियलिटी ऑफ वर्ल्ड अराउंड हिम. मीन्स प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग को सब्जेक्ट मैटर में मोर इंटरेस्टिंग और फैसिलिटेट बनाती है. फैसिलिटेट मीन्स स्टडी में एक्शन और प्रोसेस को मोर इजी बनाती हैं एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए एबल बनाते हैं. द नेक्स्ट इज demerits of project method. Means disadvantages of project method. In that first, the project is uneconomical in terms of the time and is not possible to fit into the regular timetable. Means project time के terms में uneconomical है and regular timetable में fit होना possible नहीं है. Second, it does not provide any training in mathematical thinking and reasoning. Means प्रोजेक्ट मैथमेटिक थिंकिंग एंड रीजनिंग में कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं. देन थर्ड, द लर्निंग इज़ कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म लर्निंग और बैलेंस लर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल स्टूडेंट एज ईच स्टूडेंट परफॉर्मेंस ए डिफरेंट एक्टिविटी. मीन्स लर्निंग कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म और बैलेंस लर्निंग है बट ऑल स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ईच स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस एक डिफरेंट एक्टिविटी में होता है. द नेक्स्ट फोर्थ, textbooks and instructional material are hardly available. Means textbooks and instruction material may be available ho. The next, for the success of this method the teacher should be exceptionally resourceful and gifted and knowledgeable. Means इस मेथड की सक्सेस के लिए टीचर को एज ए एक्सेप्शनली रिसोर्सफुल एंड गिफ्टेड एंड नॉलेजेबल होना चाहिए. The next, it is an expensive method as it takes use of a lot of resources which are not immediately available in the school. Means project method एक expensive method है because बहुत सारे resources का use करता है जो स्कूल में immediately available नहीं है. The next, syllabus cannot be completed on time using this method. Means इस मेथड में मीन्स प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करके सिलेबस को टाइमली पूरा नहीं किया जा सकता. द नेक्स्ट, टीचिंग इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड. मीन्स टीचिंग डिसऑर्गेनाइज्ड है मीन्स नॉट प्रॉपरली प्लान्ड है और डिसरप्ट द सिस्टमेटिक ऑर्डर एंड फंक्शनिंग.